Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the problems of the lattice theory. In my previous video lecture, I have told you about the poset and its properties as well as the definitions of lattice and its some properties, that is the bounded lattice, complemented lattice, distributive lattice and their important properties. So today we will discuss the problems which has already appeared in the exam, university exam. Also they are so important for GATE exams. Okay, so listen this video very carefully, and if you still haven't subscribed this channel, then subscribe. So let us start with the topics. So in our previous lecture we have learned how or what is the process to check a lattice is distributive or not. So it is very complicated job to check the lattice is distributive or not, but we have simply done a theorem, that is, if a lattice contain any pentagonal lattice or diamond lattice as a sublattice, then it cannot be distributive and vice versa. So let us start with the problems that already appeared in the exams. So let us take the problem number 1. Consider the poset A is equals to this. This is the poset where the relation is the divisibility relation. From this we have to find out the maximal element, minimal element, greatest element and least elements. Also we have to check whether this poset is a lattice or not. This problem has already come 2-3 times and carrying 5 marks. Okay, so let us try to draw the Hess diagram. Already I have told you about the how to draw a Hess diagram, because it is so important. Without knowing the Hess diagram we cannot go anything for this chapter. Okay, so let us try to अंडरस्टैंड इट अगेन. तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखेंगे, डिविजिबिलिटी है हमारा रिलेशन, तो ये स्टार्ट होगा 2 से. सो 2 4 को डिवाइड करता है और 2 4 के बीच में कोई नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 4 को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 4 है 2 का इमीडिएट सक्सेसर एंड 2 है इमीडिएट प्रीडिसेसर. अगेन वी कैन सी दैट 2 डिवाइड्स 6 एंड इन बिटवीन 2 and 6 देयर इज नो अदर एलिमेंट which is divisible by 2 and which divides 6, the same element. 2 4 को डिवाइड करता है लेकिन 4 6 को नहीं डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 2 इज द इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ 6 एंड 6 इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 2. सो 2 से हम लोग 6 को ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट चले आते हैं 2 to 12. अगर 2 to 12 हम लोग सोचेंगे, सो 2 डिवाइड्स 12, इट इज वेरी गुड, बट इन बिटवीन 2 and 12 देयर आर 2 एलिमेंट्स, दैट इज 4 and 6. सो 2 डिवाइड्स 4 and 4 डिवाइड्स 12, तो एक क्या हो रहा है, एक बीच में एलिमेंट हम लोगों को मिल गया, तो 2 कैन नॉट बी इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ 12. तो 2 से 12 हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते. अभी हम लोग सोचते हैं 4 से. 4 डिवाइड्स 12, वेरी गुड, एंड इन बिटवीन 4 and 12 देयर इज नो अदर एलिमेंट व्हिच इज मेंटेनिंग द सेम रिलेशन, दैट इज 4 डिवाइड्स दैट एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट डिवाइड्स 12 अगेन. सो हम लोग 4 से 12 को ज्वाइन कर सकते हैं. अभी आ चलते हैं 6 से. 6 divides 12 and 6 in 12, in between 6 and 12 there is no other element which is divisible by 6 and also divides 12. तो 6 से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 को ज्वाइन कर सकते हैं. अभी चले आते हैं 6 से 18. 6 divides 18, वेरी गुड. 6 18 को डिवाइड करता है और 6 और 18 के बीच में ऐसा कोई नहीं है जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है और वो ही 18 को भी डिवाइड कर रहा है. ठीक है, 6 से भी डिवाइड होना चाहिए और 18 को भी वो ही डिवाइड करेगा. ठीक है, ऐसा कोई थर्ड एलिमेंट नहीं है. दैट मीन्स वी कैन ज्वाइन 6 to 18. 18 इज द इमीडिएट सक्सेसर and 6 is the immediate predecessor. So 18 will be in the higher level. But you can see that there is an element 9. What will be the position of this element 9? 9 divides 18. Okay, so 9 divides 18 and in between 9 and 18 there is no other element which is divisible by 9 as well as which divides 18. सो 9 से भी 18 को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं. अभी 9 का पोजीशन क्या होगा, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग रहता है. तो 9 का पोजीशन क्या होगा, देखो यहाँ पे 6 से हम लोग 18 को ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो 6 इज इन द लोअर लेवल ऑफ 18. 6 18 के नीचे रहेगा, तो 9 भी 18 को डिवाइड करेगा, तो 6 और 9 दोनों एक सेम जगह पे रहेगा. ओके, तो 6 और 9 विल बी इन द सेम लेवल बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय द सेम इमीडिएट सक्सेसर. ओके, 6 और 9 दोनों का इमीडिएट सक्सेसर सेम है, इसीलिए 9 और 6 क्या होगा, सेम लेवल पे रहेगा. लेवल का मतलब नीचे रहेगा. ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ग्राफ ऐसा ही होना है. ग्राफ तुम लोग डिफरेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन रिलेशन को अच्छे से मेंटेन करना है.
Clear? Now by this process I have completed the whole Hess diagram. Now you can easily understand. Now in the we have to find out maximal element, minimal element, greatest element and least elements. Now obviously you can see that there are so many values or peaks are there from where no element is coming out. So beyond 27 there is no element is coming out. Beyond 72 there is no element. 42 के बाद भी कोई element नहीं है. 60 के बाद भी कोई element नहीं है. That means these all peaks are nothing but the maximal elements. ठीक है? तो 27, 72, 48, 60 these all are maximal elements. Similarly minimal element के लिए क्या करना है? हम लोग को नीचे ढूंढना है. तो 2 के नीचे और कोई एलिमेंट नहीं है और 9 के भी नीचे देखो और कोई एलिमेंट नहीं है. ठीक है? सो 2 and 9 becomes the minimal element. Now what will be the greatest element? ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए था? ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए हम लोग को ढूंढना है एक एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ सभी एलिमेंट क्या होता है, कनेक्ट होता है. इसका मतलब पूरा हेस डायग्राम एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर जाएगा. तो यहाँ पे तो पूरा हेस डायग्राम कन्वर्ज नहीं कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पीक मिल रहा है हम लोगों को. तो अगर डिफरेंट डिफरेंट पीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमल एलिमेंट है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है. ठीक है? सेम हैपेंस फॉर द लीस्ट एलिमेंट ऑल्सो. The Hess diagram is not starting from a single element, it is starting from 2 as well as 9. These are two lower peaks, therefore it cannot have any least element. Now simply we have to find out whether lattice is a poset is a lattice or not. Okay, so whenever we can see that you can find out LUB of 6 and 9. So यहाँ पे है 6 और कहाँ पे है 9? यहाँ पे है 9. तो 6 और 9 का अगर LUB करेंगे तो रिलेशन है डिविजिबिलिटी. पिछले क्लास में मैंने कहा था इफ द रिलेशन इज डिविजिबिलिटी देन LUB कैन बी फाइंड आउट बाय सिंपली टेकिंग द LCM. सो टेकिंग द LCM ऑफ 6 and 9 and that will be equals to 18. Very good. And 18 is present in this poset. So if 18 is present in this poset, we have to simply check whether the GLB is present or not. Now GLB of 6 and 9 that is equals to GCD of 6 and 9 because the relation is divisibility, and GCD of 6 and 9 that is equals to 3 which is not present in this poset. So what is the definition of lattice? Lattice का definition ये था कि हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए हम लोग को LUB और GLB चाहिए ही था. ठीक है? तो यहाँ पे एक पेयर हम लोग को मिल रहा है 6 और 9 जिसका LUB GLB एग्जिस्ट नहीं कर रहा है साइमल्टेनियसली. तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? लैटिस नहीं होगा. LUB भी एग्जिस्ट करना है, GLB भी एग्जिस्ट करना है. ठीक है? तो ये एस विथ रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी क्या नहीं होगा? लैटिस नहीं होगा. क्लियर? नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. ऐसा करके कोई भी डायग्राम दिया हुआ रख सकता है. ठीक है ना? ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ऐसा डायग्राम 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वे पे. तो मैं यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर देता हूँ कैसे टेक्निक से. टेक्निक क्या है? टेक्निक को समझो, प्रॉब्लम समझने की कोई जरूरत नहीं है. टेक्निक को अच्छे से समझो तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट. वेयर द क्वेश्चन इज दैट इज दिस हेस डायग्राम ऑफ ए पोसेट गिवन बाय दिस डायग्राम इज इट ए लैटिस और नॉट, and whether this lattice is distributive, complemented or not. Justify your answer. Clear? So let us start. So whenever a Hess diagram is given here and simply we have to check whether it is a lattice or not, that means we have to find out that every pair of elements has a LUB as well as a GLB or not. So for this case we want to make two tables, that is the LUB table and GLB table. Okay, so LUB table and GLB table is nothing but looking like some composition table. Composition table क्या होता है कि यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 0 A B C E D 1. so ये सभी एलिमेंट को ये सभी एलिमेंट के साथ हम लोग को कंपोज करना है. ठीक है? और उसका LUB निकालना है और GLB निकालना है. तो एक टेबल में यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, वो बाकी टेबल तुम लोग खुद ब खुद समझ जाओगे. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द LUB. सो 0 A B C E D 1, 0 A B C D E 1. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है. तो 0 तो लिस्ट एलिमेंट है. यहाँ पे देखते ही हम लोग को पता चल जाता है कि 0 है लिस्ट एलिमेंट और 1 है ग्रेटेस्ट एलिमेंट. तो लिस्ट एलिमेंट के साथ अगर कोई भी एलिमेंट का हम लोग LUB लेते हैं तो वो लिस्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या होगा? ये वही एलिमेंट को बैक करेगा. ठीक है? तो 0 A B C E D 1 ये रो सेम आएगा. वैसे ही ये कॉलम भी क्या होगा? ये कॉलम भी सेम हो जाएगा. ठीक है? ये तो आसानी से हो जाता है. और एक आसानी से होगा, देखो यहाँ पे है 1, तो 1 है ग्रेटेस्ट एलिमेंट. तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ अगर कोई भी एलिमेंट का हम लोग LUB निकालते हैं तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट को बैक करता है. दैट मीन्स व्हेनेवर यू टेक द LUB of some element with 1 we will get back 1 again. So whenever we go to 1
with any other element, this row will be exactly equals to 1 and this column will be exactly equals to 1. Now go for the other rows and columns. So let us start with A और 0. तो A और 0 अपसाइड पे कहाँ पे मीट कर रहा है? तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि अगर डायग्राम है, रिलेशन नहीं है, तो हम लोग को कैसे LUB GLB ढूंढना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 0 है और A है, तो A और 0 अपसाइड पे कहाँ पे मीट कर रहा है? 0 पे मीट कर रहा है, तो A पे मीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा A और A. तो A और A क्या होता है? A के साथ A का ही LUB निकालना है, तो A तो A पे ही है, तो ये हो जाएगा A और B. तो ये यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे कॉमन मीट हो रहा है? पहला कॉमन मीट कहाँ पे हो रहा है? देखो, तो A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो A यहाँ से E पे जाएगा, उसके बाद 1 पे जाता है, B यहाँ से D पे जाएगा, उसके बाद 1 पे जाता है. तो पहला मीट कहाँ पे हो रहा है? दोनों का अपसाइड पे. अपसाइड पे दोनों का पहला मीट हो रहा है 1 पे. दैट मीन्स A और B दैट विल बी इक्वल्स टू 1. क्लियर? सिमिलरली A और C. तो A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो A जाके मीट करेगा E पे और C जाके मीट करेगा E पे. तो A और C अपसाइड पे कहाँ पे मीट हो रहा है? कॉमन मीट E पे हो रहा है, तो ये हो जाएगा E. अभी A है, यहाँ पे E है, तो A है यहाँ पे और E है, E तो E पे ही होगा और A जाके E पे मीट करेगा, तो A और E का पहला मीट कहाँ पे हो रहा है? पहला मीट, that is E on the upside. Similarly A and D. So whenever we go to A and D, you can see that A will go to E, then after it will go to 1 and D will directly go to 1. So A and D will meet at the common at which upside? In upside it will common meet at 1. So it will be 1. Similarly you can check this row B. So B and A. So B and A तो 1 होगा, पहले ही हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं. B and C. तो B यहाँ पे है और C यहाँ पे है, तो देखो B पहले जाता है D पे और C जाएगा D पे. तो B और C दोनों जहाँ कहाँ पे जाकर कॉमन मीट कर रहा है? पहला अपसाइड पे D पे. So that will be D. So by this process I have made this table. Now try to draw this table by yourself. So let us go to the GLB table. तो आप LUB के लिए हम लोग अपसाइड को ढूंढते हैं और GLB के लिए हम लोग क्या करेंगे? लोअर साइड पे चले आते हैं, ठीक है ना? लोअर लेवल पे, दैट इज द प्रीडिसेसर पे आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 0 है लिस्ट एलिमेंट, तो 0 के साथ अगर कोई भी एलिमेंट का हम लोग GLB लेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेंगे, तो वो 0 ही आएगा. तो ये रो पूरा 0 हो जाता है, ये रो भी, कॉलम भी पूरा 0 हो जाता है. अगर 1 है हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट और 1 के साथ कोई भी एलिमेंट का हम लोग GLB लेते हैं, तो वो एलिमेंट बैक करता है. तो 1 के साथ कोई भी एलिमेंट का तुम लोग GLB ले लो, तो ये पूरा कॉलम बैक करके आएगा और ये भी पूरा कॉलम बैक हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो, लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो. अभी चले जाते हैं दूसरा पे, A और A एंड A क्या होगा? A ही होगा, ये तो सिंपल है. अभी A है यहाँ पे, B है यहाँ पे, ठीक है? तो A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो A और B नीचे कहाँ पे कॉमन मीट कर रहा है? तो नीचे, इन द लोअर साइड. A एंड B नीचे यहाँ पे 0 पे मीट कर रहा है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0. A एंड C. तो A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो A नीचे आएगा 0 पे, C नीचे आएगा 0 पे, तो A एंड C कॉमन मीट लोअर साइड, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. A एंड E. तो E यहाँ पे है, A यहाँ पे है, तो E नीचे आके A पे आएगा और A तो A पे ही है, तो A एंड E क्या हो जाएगा? A होगा. फिर से A एंड D. तो A यहाँ पे है, D यहाँ पे, तो D नीचे आएगा B पे, B के बाद ये आएगा 0 पे और A डायरेक्ट आता है 0 पे. तो D और A दोनों नीचे कहाँ पे मीट कर रहा है? वो 0 पे मीट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, B से देखो, B और A तो क्या होगा? 0 होगा. B और B भी होगा. B और C क्या होगा? B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो B और C दोनों नीचे कहाँ पे कॉमन मीट कर रहा है? 0 पे मीट कर रहा है. B और D नीचे कहाँ पे कॉमन मीट कर रहा है? B पे, क्योंकि D नीचे B पे आएगा और B तो B पे ही है. अब B और 1 क्या होगा? वो तो फिक्स्ड हो चुका है पहले ही, ठीक है? तो ऐसे करके मैंने ये पूरा टेबल कंपोज किया हुआ है. खुद से पहला मेरा बात समझो और खुद से ये टेबल करो, उसके बाद चेक कर लेना मेरा वीडियो से कि तुम्हारा टेबल और मेरा टेबल सेम है कि नहीं है, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? अभी एक एक करके चेक कर लेते हैं. तो हम लोग देख सकते हैं कि LUB और GLB का जो मैंने टेबल बनाया है, यहाँ पे all these elements, those elements present in this composition tables are nothing but the elements of this POSET. Okay, no other element other than 0, A, B, C, E, D and 1 appearing in this two table. That means जो भी एलिमेंट है वो यही का एलिमेंट है, बाहर से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे एंटर नहीं हुआ है और सभी एलिमेंट का LUB GLB एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दैट इज, इट इज नथिंग बट ए लैटिस. Now to check whether
it is complemented or not, first of all we have to learn, go to the definition of the bounded lattice. अगर bounded नहीं है तो complement तो नहीं होगा, और बाउंडेड के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट लीस्ट एलिमेंट रहना चाहिए। तो 0 है हमारा लीस्ट एलिमेंट और 1 है हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो ऑब्वियसली लैटिस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव निकालते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव निकालने के लिए क्या होना चाहिए था, मैंने क्या बोला था अभी तुम लोगों को, इफ एनी लैटिस कंटेन पेंटागोनल लैटिस और डायमंड लैटिस एज ए सब लैटिस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटिव। तो तुम लोग देख सकते हो ये डायग्राम के कोई भी 5 वर्टेक्स है जो पेंटागोनल शेप पे है या फिर डायमंड शेप पे है, कोई भी 5 वर्टेक्स का सब लैटिस यहाँ पे नहीं है और सब ग्राफ यहाँ पे नहीं है जो डायमंड शेप में आ रहा है या फिर पेंटागोनल शेप पे आ रहा है। यहाँ पे चारों चारों करके है, कोई भी 5 वर्टेक्स का कोई सेट ही नहीं है जो पेंटागोनल या फिर डायमंड शेप पे है। दैट मीन्स दिस lattice is nothing but a distributive lattice. Okay, you cannot see here, either 6 will appear or I think that is the 4 is appearing. Okay na, there is no other 5 vertices which appearing as a diamond shape or pentagonal shape. Therefore this lattice is obviously a distributive lattice. Next, what is the complemented lattice? So for complemented, first of all already we have declared this is a bounded lattice. So let us check whether it is complemented or not. तो यहाँ पे दोनों टेबल पे देखो, A और B दोनों को मिला के यहाँ पे 1 आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंटेड का डेफिनेशन क्या था, एक एलिमेंट उस दूसरा एक एलिमेंट के साथ हम लोग LU भी लेंगे तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आएगा, और GL भी लेंगे तो वो लिस्ट एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो A और B को मिला के यहाँ पे 1 मिल रहा है और A और B को एंड करके हम लोग को 0 मिल रहा है। सो A and B LUB is equals to 1, A and B GLB equals to 0. That means A is complement of B and B is complement of A. It is okay, but we have to find out for complemented lattice every element should have the complement. But here you can see that E and D that is making 1. So E and D अगर 1 हो रहा है तो E और D का GLB क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, तब E और D क्या हो जाएगा, complement of each other होगा। तो E और D को देखो क्या होता है, यहाँ पे C हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि E और D इक्वल्स टू 1 बट E एंड D इक्वल्स टू C। अभी इस रो को चेक करो, E के जो रो है यहाँ पे इसको चेक करो, ये रो को चेक करो, तो चेक करके देखो कोई दोनों एलिमेंट हम लोग को मिल रहा है कि जहाँ पे E और समथिंग इक्वल्स टू 1 और E एंड समथिंग इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो इसका मतलब E का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो एक एलिमेंट हम लोग को मिल जाता है जिसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। That means this lattice cannot be a complemented lattice. This question carries 7 marks, already comes in the exam. Okay, so let us go for the next problem. ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, सेट थ्योरी का एक प्रॉब्लम हमने किया था, वही टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कि एक लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है और जहाँ पे A एंड B इक्वल्स टू A एंड C हो रहा है, A और B इक्वल्स टू A और C हो रहा है, हम लोग को प्रूफ करना है B इक्वल टू C। तो B से स्टार्ट करेंगे, B एंड B और A से। ठीक है, B को हम लोग लिख सकते हैं B एंड B और A दैट इज द LUB ऑफ A एंड B। उसके साथ B का अगर GL भी लेंगे तो वो B को ही बैक करेगा। ये होता है एब्जॉर्प्शन लॉ लैटिस के ऊपर जो डिफाइंड है। ठीक है, अभी A और B का मतलब है A और C, जो गिवन कंडीशन है यहाँ पे बिठा दिया। अभी बोला है कि ये लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है, so we are applying the distributive property, that is B and A or B and C by distributive condition. Now B and A is nothing but A and C. By the condition we can substitute, or B and C. So A and C, B and C, from here we can see that C is distributive. Okay, by the distributive law we can write down B or A and C by the help of the distributive property on the lattice, where and is our GLB and or is our LUB. So B or A or the LUB of A or B is nothing but LUB of A or C. It is already given, so we are writing down here A or C and C. तो ये को कंबाइन करके हम लोग को क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द एब्जॉर्प्शन लॉ। तो लैटिस के ऊपर भी एब्जॉर्प्शन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है। क्लियर, दैट इज द प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज लुकिंग लाइक ए De Morgan's law, that is show that in a complemented distributive lattice this happens. It is generally not happen for a normal lattice, it will happen only for the complemented distributive lattice, that we have to remember. Okay, so simply what we have to check here, I am proof 1 and you have to prove
do by yourself. Okay, A and B whole complement will be equals to A complement or B complement. A and B whole complement means what? That is the GLB of A and B whole complement. That will be equals to A complement, LUB, B complement. Okay. Now, whenever we know that an element will be an complement of the other element, then their LUB will be equals to 1 and GLB will be equals to 0. So whenever we want to prove that this element is the complement of this element, we have to simply check whether their union or LUB is equals to 1 and their GLB is equals to 0 or not. Since it is given that it is the lattice is complemented and distributive, so obviously it is bounded. So 0 and 1 will be the least element and greatest element respectively. So let us check it. So A and B or A dashed or B dashed. Okay. So we have to make it 1. Simply applying the distributive law. So A or A dashed or B dashed and B or A dashed or B dashed. We can write down this by distributive law. Now applying the associative law, we can take these two common. A or A dashed taken one side, left or B. तो दोनों यहाँ पे LUB है, तो ये दोनों को पहले कर लेते हैं, उसके बाद B डैश के साथ इसका LUB करेंगे. ठीक है, तो इसको बाहर छोड़ देते हैं. और यहाँ पे देखो B यहाँ पे है, B डैश यहाँ पे, तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके B डैश को पहले यहाँ पे लाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर लेते. तो एक स्टेप में यहाँ पे किया हुआ है, एक स्टेप मैंने यहाँ पे जंप किया हुआ है, इसलिए मैं तुम लोगों को ये डिस्क्राइब कर दिया कि बी डैश को पहले कम्यूटेटिव लॉ से बी डैश और ए डैश बनाना है, उसके बाद बी और बी डैश करना है. क्लियर? सो बी और बी डैश और ए डैश अप्लाइंग एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ साइमल्टेनियसली. सो ए और ए डैश इज इक्वल्स टू व्हाट? ए और ए डैश इक्वल्स टू 1 और बी डैश, बी और बी डैश इक्वल्स टू 1, बी और बी डैश इक्वल्स टू 1. दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस. Since A dash B dash exists, so it will satisfy the laws of the complement. Now 1 is the greatest element, and whenever you take the LUB with greatest element, it will back the 1 again. So यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और 1 के साथ 1 का अगर GLB करेंगे तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. ठीक है, सेम प्रोसेस से दूसरा यहाँ पे और देके हम लोगों ने 1 प्रूफ किया है, यहाँ पे एंड देके हम लोगों को क्या करना है? 0 प्रूफ करना है. और का मतलब क्या है? यहाँ पे LUB है और एंड मतलब GLB है. ठीक है ना, तो GLB को हम लोग को 0 प्रूफ करना है. तो 0 प्रूफ हो गया, चेक कर लो खुद से, तो 0 आ जाता है. तो हम लोग देख सकते हैं कि दो एलिमेंट है यहाँ पे, A एंड B और A डैश और B डैश दोनों एलिमेंट है, जो दोनों एलिमेंट का LUB लेके 1 आ रहा है और दोनों एलिमेंट का सेम एलिमेंट का GLB लेके 0 आ रहा है. तो इसका मतलब one element is the complement of the other. So we can directly write down that A and B whole dash will be equals to A dash or B dash. Okay. Now try the problem number 2 by yourself. Let us go to the next problem. ये भी बहुत एक important problem है. क्या problem है? देखो, it is in a distributive complemented lattice. We have to prove that complement of each element is unique. Very very important property. अगर lattice complemented है, distributive है, तो हम लोग को क्या करना है? Proof जो भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंटेड है इसका मतलब है हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. तो सभी एलिमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए. तो यूनिक प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू कंसीडर टू एलिमेंट्स. ओके, सो लेट एल बी ए डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस एंड ए बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एल. वी आर कंसीडरिंग A1 and A2 be two complements of A. So if A1 and A2 are complements of A, it will satisfy the definition of the complement. That is A and A1 will be equal to 0, A or A1 will be equals to 1. A and A2 will be 0 and A or A2 will be equals to 1. Since we have to prove that A1 A2 will be since we have to prove that the complement will be unique, that means we have to show that A1 and A2 will be equal. So let us start with A1. A1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A1 और 0. 0 हमारा क्या है? लिस्ट एलिमेंट है. तो लिस्ट एलिमेंट के साथ अगर कोई भी एलिमेंट का हम लोग LUB लेते हैं वो वापस आ जाता है. ठीक है ना, तो हम लोग A1 को ऐसे लिख सकते हैं, A1 इक्वल्स टू A1 और 0. तो 0 को हम लोग क्या करेंगे? अभी 0 का वैल्यू A एंड A2 का जो वैल्यू है 0, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, तो A एंड A2 दैट इज द GLB ऑफ A एंड A2 इक्वल्स टू 0. सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू हियर इंस्टेड ऑफ 0. सो A1 और A एंड A2. अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया हुआ है, तो A1 और A एंड A1 और A2 होगा. तो A1 और A that is nothing but our 1 because A और A1 is equals to our 1. So 1 and A1 और A2. तो 1 के साथ कोई भी एलिमेंट का अगर हम लोग GLB लेते हैं तो वो एलिमेंट वापस आ जाता है. ठीक है, अभी फिर से A2 से स्टार्ट करते हैं.
तो a2 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फिर से a2 a1 और 0 था, यहाँ पे हम लोग करेंगे a2 और 0। तो यहाँ पे 0 जो है उसका कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। क्या करना है, a एंड a1 को सब्स्टिट्यूट करना है 0 के इंस्टीट्यूट पे। तो 0 के इंस्टीट्यूट पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट किया है a एंड a1, फिर से इसको सॉल्व किया है, उसके सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है a1 और a2। तो तुम लोग देख सकते हो a1 का वैल्यू है a1 और a2, a2 का भी वैल्यू है a1 और a2, तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब a1 a2 भी क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी टू डिफरेंट एंटिटीज, इट मस्ट बी यूनिक क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एल एंड और एक लैटिस है जहां पे a एंड b विल बी इक्वल्स टू a इफ एंड ओनली इफ a और b इक्वल्स टू b। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो a और b का अगर GLB लेंगे वो a आएगा, कब आएगा, अगर a और b का LUB क्या आता है, b आता है, ठीक है ना। तो हम लोग कर रहे हैं a इफ एंड ओनली इफ है, एक को पकड़ के दूसरा दिखाना है, फिर से दूसरे को पकड़ के पहला दिखाना है। तो a एंड b इक्वल्स टू a, तो a एंड b को इक्वल्स टू a निकलने के बाद बोथ साइड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, b के साथ LUB ले रहे हैं, ठीक है ना। सो और b देके बोथ साइड पे और b ऐड कर दिया हमने यहाँ पे बोथ साइड पे, ठीक है। तो a एंड b और b, ये तो एब्जॉर्प्शन लॉ हो जाएगा, a एंड b और b से b आ जाता है और a और b राइट हैंड साइड पे होगा। तो b इक्वल्स टू क्या प्रूफ हो गया, a और b, एक लाइन का प्रूफ है, एक लाइन का प्रूफ, लेकिन एग्जाम पे आता है, ठीक है ना। सिमिलरली आई हैव डन द कॉन्वर्स स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट इन ए पोसेट, ये पोसेट का एक प्रॉब्लम छूट गया था, तो मैं यहाँ पे इसको बता के ये टॉपिक को खत्म करूंगा। इन ए पोसेट दैट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड द लिस्ट एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट देन दे मस्ट बी यूनिक क्वांटिटी, ठीक है। तो पोसेट का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट लिस्ट एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, दोनों दोनों करके नहीं होता है। तो मैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए कर देता हूं, तुम लोग लिस्ट एलिमेंट के लिए प्रूफ कर लेना खुद से। सो लेट अस कंसीडर यूनिक प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ग्रेटेस्ट एलिमेंट पकड़ेंगे, से u1 u2 b2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ द पोसेट विल बी रिलेटेड टू u1 एज वेल एज u2। सो x लेस इक्वल्स टू u1, x लेस इक्वल्स टू u2, सभी एलिमेंट u1 के साथ रिलेट होगा और u2 के साथ रिलेट होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। अभी u1 को हम लोग ग्रेटेस्ट एलिमेंट पकड़ रहे हैं और u2 को कोई भी एलिमेंट पकड़ रहे हैं, क्योंकि u1 u2 तो सेट का ही एलिमेंट है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट होने के लिए तो पहले सेट का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो u1 u2 these two are elements of S, so first of all we are assuming that u1 is the greatest element and u2 is a simply an element. So what will happen, u2 will be less equals to u1. By conversely, similarly u2 is the greatest element and u1 belongs to S, so u1 less equals to u2 hold. Now less equals to is the antisymmetric relation, so u1 less equals to u2 and u2 less equals to u1 will give us u1 and u2 will be equal. That means the greatest elements, if it exists, then it must be unique. Try to solve for the least element. Okay, so this is the end of our this topic, that is the lattice theory and the related problems. All the problems that I have done are very important for all of your exam. No need to do more things. If you want to practice it, you can practice, but I think that my note is very sufficient.